ہے اور یہ دیکھیں، یہ سنیں اس کو. اور عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی، ان کے بعد یہ نتیجہ تم نکال کیسے سکتے ہو کہ جماعت احمدیہ رابطے ہو گئی؟ چنانچہ اس کی پیش بندی یہ کر لی گئی کہ جماعت کو قانوناً حکماً مجبور کیا گیا کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹ، کوئی ریکارڈنگ وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دیں. اس کارروائی کا نتیجہ کیا تھا وہ اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ آپ اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرواتے جب اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ساری نیشنل اسمبلی نے آپ کے بیان کے مطابق متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، تو پھر شائع کریں اور ان کا جھوٹ دنیا پر ظاہر کریں. انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ شائع کریں، شکر کرو کہ ہم شائع نہیں کرتے. اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں آدھا تو ان کی کسر نفسی تھی. اگر حقیقتاً پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف پہنچ جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے. ہاں جی، آپ نے سن لی؟ جی سر، یہ تو میں نے سنی ہوئی تھی پہلے. ہاں جی، تو اس نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے. کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ متفقہ طور پر فیصلہ دیا، مطلب جھوٹ کی کمال دیکھیں قادیانیوں کا، جو منہ پر جھوٹ بولتے ہیں. بھائی اسمبلی میں 3 یا 4 قادیانی ممبر تھے، قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، جو قادیانی تھے، اور مرزا ناصر نے اپنے ہاتھ سے ان کو چنا تھا کہ یہ صحیح وفادار ہیں، یہ قومی اسمبلی میں ہمارے ریپریزنٹیشن کریں گے. اور ان کو جناب پوری بھی نہیں ہوئی تھی کراس کویسچننگ، ایک دن انہوں نے کھڑے ہو کر مرزا ناصر کو کہا تم سے بڑا جھوٹا اور مرتد ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں. اور مرزا ناصر کو کہا انہوں نے کہ ہم تمہیں نہ صرف جھوٹا سمجھتے ہیں بلکہ تم جو ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہو دل کرتا ہے کہ جوتا اٹھا کے تمہارا منہ توڑ دوں اس وقت. اور انہیں چیئرمین نے بٹھایا، اسپیکر نے، کہ جی آپ اپنا اصل مدعا بیان کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیا. ورنہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اپنے قادیانی جو مرزا ناصر مرتد نے اپنے ہاتھ سے چنے تھے وہ تو ان کے حق میں ووٹ دیتے. ایک بندے نے بشمول وہ جو قادیانیت تھے اور انہوں نے قادیانیت پر قادیانیوں کی بات سن کر لعنت بھیج دی، ایک بھی ووٹ ان کے حق میں نہیں ڈلا. یہ اس کا اقرار کر رہا ہے کہ متفقہ طور پر کافر قرار دے دیا. یہاں پر یہ بتانا مرزا طاہر کیوں بھول گیا کہ وہاں تو ہمارے بھی ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، جو بھٹو صاحب نے ہمیں سیف سیٹیں دی تھی. 2.5 کروڑ روپیہ جو ہم نے انویسٹ کیا تھا اس کے بدلے میں ٹوٹل 15 سے 20 صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیف سیٹیں انہیں دی پیپلز پارٹی نے. اور ان کے وہ جو ممبر تھے قومی اسمبلی کے انہوں نے ان پر لعنت بھیج دی. یہ کیوں نہیں بتایا اس؟ کیونکہ جھوٹے فراڈی ہیں، وہ تو بات ہی غلط کر رہا ہے. اور دیکھیں انسان کی عقل یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی کہ 600 ممبر موجود ہوں قومی اسمبلی کے. 600 سے زائد ممبر تھے. لوگوں یاد رکھنا، یہ 1 2 4 آدمیوں کی بات نہیں کر رہا تھا. 600 سے زائد ممبر تھے قومی اسمبلی میں، اور کسی ایک نے بھی ایبسٹین نہیں کیا. یہ قومی اسمبلی کے رکن کا حق ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ چلو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، تو وہ کہتے ہیں جی میں ووٹ نہیں دیتا، نہ تمہیں دیتا ہوں نہ اسے دیتا ہوں، میں کسی کے حق میں ووٹ نہیں دیتا. اسے جو ہے نا قومی اسمبلی کی زبان میں ڈیموکریٹک لینگویج میں ایبسٹیننس کہتے ہیں، ایبسٹین کرنا. ایک بھی ایبسٹیننس نہیں تھی، ایک بھی.
किसी मेंबर ने 600 से जायद मेंबरों में से किसी मेंबर ने नहीं कहा कि हम वोट नहीं देंगे, ना तुम्हें ना कादियानियों को। सब ने कादियानियों के खिलाफ वोट दिया और उसमें वो कादियानी भी शामिल थे जिन्होंने मिर्ज़ा नासिर पर ना सिर्फ लानत भेजी बल्कि वो कहते थे इसको उल्टा लटका के जूते मारो और इसको कहो खड़ा होकर जवाब दे। वो इसको सुनने तक को राजी नहीं थे। ये क्यों नहीं बताते कादियानी तुमने वो जो इतने अपने मेंबर चुने कौमी असेंबली के लिए, जो सेफ सीट पर भुट्टो ने तुम्हें सीटें दी, तुमने कोई लानती चुने जो तुम पर ही लानत भेजते थे? तुम तो वो आदमी चुनोगे जो तुम्हारा सख्त तरीन वफादार हो। कौमी असेंबली की कार्रवाई इतनी साफ और सच्ची थी कि तुम्हारे वो आदमी जो पैदाइशी कादियानी, जिनके मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद के दौर से जो कादियानी थे, उन्होंने तुम पर लानत भेजी। पहली बात तो ये साफ रखो। किसी कादियानी के पास इसका जवाब है तो आकर हमें बताए। और कादियानी, इसने एक और बात कही, मैं आपको उसका सबूत बताता हूं। इसने एक बात कही कि जनाब हमें हुक्मन मजबूर कर दिया गया कि हम कार्रवाई की ना रिकॉर्ड रखें और ना उसको हम सुनाएं। तो जनाब मैं आपको वो सफ़ा नंबर बताऊंगा जहां पर ये बात लिखी हुई है। ये मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं टैग इस पर, तो मैं वो टैग ढूंढ रहा हूं ताकि आप मुझे 1 मिनट दें, आप बात करें तो मैं वो सफ़ा नंबर ढूंढ लूं ताकि लोगों को गलती ना लगे। आबिद भाई आप बात करें इतनी देर। जी शुक्रिया जी अली भाई। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे बहुत ही प्यारे भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार साहब भी मौजूद हैं जी, वो भी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अली भाई, डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुनने को बहुत कुछ है आज इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से, तो हम खामोश होकर इंशाल्लाह सुनेंगे। जो सवालात तो ज़हन में उभरेंगे, उम्मीद है डॉक्टर साहब उसका तशफ़ी जवाब देंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज बड़ा मुबारक दिन है और मुबारक इस लिहाज से एक तारीखी नौयत का दिन है और वो सारी यादें 1974 वाली, वो एक दफ़ा जो जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं या जो उस तारीख से गुजरे हैं उनके जहन में घूम जाती हैं। और हम तो चूँकि बाद के आने वाले हैं तो आखिर उनमें से हैं, तो हम तो फिर सवाल करके उसको थोड़ा सा महसूस ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें भी हवा का झोंका मिलेगा। जी ब्राइट स्टार भाई, असल बात ये है कि हम लोग जो है ना बड़े इजी होके बैठे हुए हैं। जो मुकाबला हमारे अकाबरीन ने, हमारे अबो अजदाद ने, हमारे उलमा ने इनका उस टाइम पे किया, इनका दजलो फरेब, जिनको थ्रेट्स थे इनकी तरफ से, बाद को मारा भी गया, बाद को और तरीक़ों से टॉर्चर किया गया, नुकसान भी पहुंचाया गया। असल जो इसके आज का जो दिन है इसके हकदार वो लोग हैं। हम तो वैसे ही वो जो है हलवा पका पकाया हमारे सामने आ गया तो हम चमचों से लेके खाना शुरू कर दिया है। असल जिन लोगों ने वो हलवा बनाने की कोशिश की, जो तकालीफ उठाई, हमारा सल्यूट है उनको, उन सब अकाबरीन को, उलमाए हक़ को, जिन्होंने इस दजल का सरेआम जुआमर्दी के साथ मुजाहरा किया, मुकाबला किया, जिनमें मौलाना सनाउल्लाह मदरसी रहमहुल्लाह, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह, मौलाना पीर मेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह, और इसी तरह जो दूसरे जिनके नाम
मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि हम लोग उनको भूल गए हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आबिद भाई, वो मुझे सफ़ा मैंने निकाल लिया है। जी 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 सर। ये मिर्ज़ा ताहिर का एक क्लेम है कि जिन्हें हुक्मन मना कर दिया गया। मैं सबसे कहता हूं कि कौमी असम्बली की कार्रवाई जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक एक नुक्ता उसका शाया किया है, उसका सफ़ा नंबर 1506, 1507 है। आप इसको पढ़कर देख लें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं इस सफ़े पर क्या लिखा हुआ है। जनाब, बात ऐसे हो रही है कि उस वक़्त कुछ सहाफ़ी मौजूद थे और उन्होंने स्पीकर से कहा, जी हम कल सुबह के अखबारों में इस कार्रवाई के बारे में तबसरा करेंगे और इसकी एक समरी छापेंगे, तो हमें इस बात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि क्लोज्ड हियरिंग थी तो इसकी इजाज़त चाहिए। और लोग अगर ये समझें कि कौमी असम्बली की अहमियत आप पर वाज़ेह हो जो है कि कौमी असम्बली ऑफ जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऊपर का अदारा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की तमाम अदालतें नेशनल असम्बली के हर हुक्म की पाबंद हैं। नेशनल असम्बली कानून साज अदारा है, वो किसी भी कानून को बदल देने का मिजाज है और कोई भी नया कानून बना देने का मिजाज है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की तमाम अदालतें और दुनिया में जितने भी हुकूमतें हैं उनकी तमाम अदालतें अपनी असम्बलियों के बनाए गए कवानीन की लागू करने की जिम्मेदार है। तो याद रखें, नेशनल असम्बली का फैसला किसी भी अदालत के फैसले से इतना ऊपर होता है कि आप उसको अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें चैलेंज करने की इजाजत दी। कादियानियों ने 26 मरतबा पाकिस्तान की अदालतों में चैलेंज किया और इन्हें हर मरतबा फ्राडिया कह दिया गया। इसके बाद इन्होंने दुनिया की दूसरी अदालतों में, जिसमें साउथ अफ्रीका की अदालत थी, वहां भी चैलेंज उठाया और एक काफिर हुकूमत ने इनको काफिर करार दे दिया और इनको बता दिया तुम मुसलमान नहीं हो। ये काफिर, साउथ अफ्रीका की हुकूमत का फैसला हर शख्स पढ़े, एक काफिर हुकूमत ने इन्हें काफिर करार दे दिया, कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो। तो चेयरमैन से जब ये सवाल पूछा गया तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये सफ़ा नंबर है जी 1506 सफ़ा है। तो चेयरमैन जो है उसके अल्फाज हैं, दे कैन आस्क थ्रू ए कमीशन और मे बी सेंट ए क्वेरी और मे बी। जब सहाफ़ी पूछ रहे थे उन्होंने कहा था कि आप कमीशन को पूछ लें, आप अपना लिख कर दें। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेक आल्सो क्लियर इज दैट देयर शैल बी नो डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी फॉर एनी पर्पस और फॉर एनी कमेंट्स until we release all the evidence which we have recorded। ये इसका मतलब ये है कि जो चेयरमैन है, स्पीकर कौमी असेंबली के ही उधर चेयरमैन थे और एक डिप्टी स्पीकर खातून थी, वो कभी उनके साथ अल्टरनेट करती थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, जब तक हम फैसला ना कर लें इसको आप डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। Till then, there cannot be a reporting of even the comments as to how the proceeding continued and what was the purpose। क्योंकि अब कौमी असेंबली ने वोट करना है ना, अब अखबार छाप देंगे तो फिर मिर्ज़ाई आके कहेंगे कि तुमने तो हवा दी तो कौमी असेंबली का बाइस्ड हो गया। तो उन्होंने कहा जब हम ये वोटिंग कर लेंगे, फैसला कर लेंगे तो आप फैसला दे देंगे। तो इस पर याहिया बख्तियार साहब ने कहा सहाफ़ियों से कि आप अब कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने ये उनको बताया कि आप जब हम फैसला कर लेंगे आप छाप दें। और फिर याहिया बख्तियार ने मिर्ज़े नासिर की तरफ मुंह करके कहा कि आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं कि हम फैसला करने तक इसको रोक दें। मिर्ज़े नासिर का जवाब आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है हाँ, कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए इसकी। लोगों, मिर्ज़ा नासिर के लफ्ज 1506 सफ़े पर लिखे हुए हैं, आखिरी लाइन है। मिर्ज़ा नासिर कह रहा है हाँ, कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए। कादियानियों, तुम इतने झूठे हो, लानत हो तुम पर अल्लाह की। तुमने, तुम्हारे मिर्ज़ा नासिर ने कहा हाँ,
कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए इसकी। कहता है कभी किसी को हवा भी ना लगने देना इसकी। और फिर इन्होंने चौधरी ज़फ़रुल्लाह के जरिए अमेरिका से, बरतानिया से और यूरोप के दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान की हुकूमत को कहलवाया कि ठीक है, तुम फैसला जो कर रहे हो वो भी हम नहीं मानते, लेकिन इसको शाया मत करना, इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। वो लोग जो इस कार्रवाई के वक्त जिंदा थे वो जानते हैं कि जमात का एक हुक्मनामा आया था मिर्जा नासिर का कि लुक छुप जाना, सारे मिर्ज़ई अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, कि इन केस ये कार्रवाई खुल गई तो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। अब आपने सुना इस झूठे लांती को, जिसको तुमने जहर दे के मारा, कादियानी, कह रहा है कि हमें हुक्मन पाबंद कर दिया गया, कि आपने कोई नहीं बात खोलनी। कोई आ जाए मिर्ज़ई, यह पाकिस्तान की हुकूमत का डॉक्यूमेंट है और किसी मिर्ज़ई में यह इतनी ताकत नहीं है कि जाकर चैलेंज करे कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो चैलेंज करेगा तो 298 के तहत उसे सजाए मौत दी जाएगी अगर वो गलत हुआ। इसलिए नहीं चैलेंज करते तुम मुझे एक चैलेंज दिखाओ कि कार्रवाई जो शाया की है हुकूमत पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने, वो उसका एक शोशा गलत है, इसकी ये 298 की सजा लागू होती है क्योंकि जब तुम ये चैलेंज करोगे तुम इस्लाम पर हमला करोगे, इसलिए तुमने चैलेंज किया ही नहीं। अब आके कोई मिर्ज़ई मुझे ये बताए कि मिर्जा नासिर कह रहा है हां हां कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए इसकी। और मिर्ज़ईयो, तुम इतने झूठे क्यों? और मैं आम कादियानी को कहता हूं कि भाई ये देख ले, ये तेरे मिर्ज़ा ताहिर ने कहा था कि हमें हुक्मन पाबंद कर दिया गया कि आपने कभी कोई ना रिकॉर्ड रखना है ना छापना। मिर्जा नासिर से याहिया बुख्तियार ने पूछा कोई कमेंट्स इस पर कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ फैसले तक ना छापो, बाद में छाप दो। मिर्जा नासिर के लफ्ज़ हैं हां कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए। होना तो यह चाहिए था, अगर मिर्जा ताहिर लांती सच बोल रहा है तो उस वक्त मिर्जा नासिर कहता भाई छापने दो ना। और मिर्जा ताहिर कह रहा है कि लोग कहते थे आधा मुसलमान आधा पाकिस्तान कादियानी हो जाएगा। कहते हैं आधा पाकिस्तानी तो नहीं, मैंने आपको उसकी असल दिखाई। 25 जनवरी 1985 का जुम्मे का खुतबा है ये उसका, मैं आपको हवाला दे रहा हूं। कहता है आधा पाकिस्तान तो दूर की बात है, पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाता। मैंने हवाला जात लगाए हैं इसी टिकटॉक के चैनल पर, ये मैंने कार्रवाई का पहला सफा लगा हुआ है और वो 2-3 मिनट की वीडियो है, वो आप देखे रेफरेंस। नतीजा क्या हुआ है, मई 2011 को ये कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने कनाडा की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में एक कादियानी ने ये रिट पिटीशन फाइल की कि जनाब आप कार्रवाई को हुक्म, आप पाकिस्तानियों को कहें कि ये कार्रवाई जारी करें ताकि पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाए, क्योंकि वो तो मिर्जा ताहिर को मानने वाला था ना। अब कनाडा की हुकूमत मजबूर नहीं कर सकती पाकिस्तान, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी जी हमारे यहां तो ये मुकदमा पेश हो गया, आपको 30 साल से ऊपर हो गए हैं कार्रवाई को, आप क्यों नहीं इसको पब्लिक करते, बैनुल अक़वामी कानून भी है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा बिस्मिल्लाह, उन्होंने उसको लिखा जी कार्रवाई पब्लिश हो गई और पहली कॉपी कनाडा की सुप्रीम कोर्ट को भेज दी कि ये लो जी आपके पास कार्रवाई का एक शोशा मौजूद हाजिर है, ये इस शख्स को दे दो। और कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने वो उस कादियानी मुर्तद को दे दिया कि ले भाई तेरी कार्रवाई आए, खुश हो जा, जाके पूरा पाकिस्तान कादियानी कर। लोगों नतीजा क्या हुआ, आज पाकिस्तान में कादियानी 1 लाख से भी कम है, लेकिन जहरीले सांप की तरह डसते जा रहे हैं। उनमें से अक्सरियत जो है
जैसे बाजवा जैसे लोग थे, कमर जावेद बाजवा, डस गया पाकिस्तान। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं तो चंद सौ, लेकिन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद। जरदारी जैसे लोग डस रहे हैं, कादियानियों के एजेंट हैं, सदर पाकिस्तान बना हुआ है। ये लोग पाकिस्तान को सांप की तरह डस रहे हैं। हमारे मुल्क की बर्बादी की एक ही वजह है कादियानियत। आप कादियानियत को पाकिस्तान से माइनस कर दो, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान आज भी एटमी ताकत है। ये देखें झूठ इनके। मिर्जा नासिर कहता है हां हां कभी इशाअत नहीं होनी चाहिए। कहना तो ये चाहिए था कि जनाब स्पीकर इनको छापने दो। अगर ये दावा ठीक है, आधा नहीं पूरा पाकिस्तान, तो कादियानी कर लेना था ना यार। कहां कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। आ जाओ, कोई कादियानी आता क्यों नहीं। और फिर कहा इशाअत भी और कमेंट्स भी नहीं होने चाहिए। और मिर्जा नासिर ने कहा हां इशाअत में कमेंट्स वगैरह आपस में हम तुम बात कर लेते हैं। कहते हैं हम आपस में तय कर लेते हैं। शार मिर्जा नासिर को तो कहना चाहिए था कि यह कार्रवाई छेती छेती छापो, हमारा सच सामने आ जाए पाकिस्तानियों के। वो तो इधर उल्टी बातें कर रहे हैं। कहते छुपा के रखना जी, माई बाप जन छापना ना, तुसी कभी इशाअत ना होने देना। इस ये कौमी असेंबली की कार्रवाई सफा नंबर 1506 और 507 है। ये आखिरी दिन है और आखिरी कमेंट्स हैं। और मिर्जा नासिर आखिर में कह रहा है हां अपनी तरफ से तो हम बड़ी एहतियात करेंगे और आइंदा भी करेंगे कि कभी इशाअत ना हो। मिर्ज़ैया वहां तो उसको कहना चाहिए था मिर्ज़ा ताहिर के मुताबिक कि नहीं जनाब आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले। आप ज्यादा से ज्यादा ये करें कि फैसले तक आप इसको रोक लें, लेकिन बाद में आप पूरी कार्रवाई पब्लिश कर दें। मैंने वो अपनी आंखों से मेमो देखा जो हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका की हुकूमत को लिखा था कि आपके हुक्म की पाबंदी में हम ये कार्रवाई को विद होल्ड करेंगे। आप क्या कहते हैं बात? मैं तो आम कादियानियों के लिए बात करता हूं कि आम कादियानी जब इस कार्रवाई के बारे में बात करते हैं और इतने लंबे लंबे झूठ सुनते हैं, भाई तुम्हारे अपने कादियानियों ने लानत भेज दी कादियानियत पर, जो तुमने हाथ से चुने हुए। एक ने भी अब्सटेन नहीं किया, हर एक ने आपके अगेंस्ट वोट दिया। उसके बावजूद कोई शख्स उठ के खड़ा कहे कि देखो जी हम तो जीत गए थे, ये 645 मेंबर नेशनल असेंबली के सब साले पागल हैं, इनमें तो हमने अपने हाथ से चुने हुए मिर्ज़ाई भी रखे थे, उनका भी दिमाग खराब हो। मानने वाली बात है। इसका लॉजिकल नतीजा तो यह है कि तुम हरामी जो हो, खलीफे मिर्जा गुलाम सोंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी में तुम साले पागल हो, लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारी तो बात आपस में नहीं मिल रही। यह है जी कार्रवाई इनकी। तो कार्रवाई का मैं शुरू का बस एक बताता हूं, उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो इंशाल्लाह बाद में बात होगी। आप देखें शुरू का मेरा बड़ा फेवरेट सफ़ा है, सफ़ा नंबर 5 है। जनाब ये कार्रवाई की ओपनिंग, अब मैंने आपको क्लोजिंग पढ़ के सुना दी। क्लोजिंग में यही था कि मिर्जा नासिर जनाब हाथ पांव पकड़ रहा था कि भाई साहब शाया ना करना और जो कुछ मर्जी करते। और मिर्जा ताहिर कह रहा था जनाब हमें हुक्मन पाबंद कर दिया गया। मुझे तो वो हुक्म कहीं नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि वो चेयरमैन पूछ रहा है कि यार मैं की कर रहा है, कितनी लिमिट है। तो मिर्जा नासिर कह रहे थे कभी भी ना शाया कर। कादियानियों आप पढ़ो कार्रवाई को, आपका दिमाग खराब है, आप नहीं पढ़ते। आपको तो हम रेफरेंस दे रहे हैं। और ये सफा नंबर 5 कार्रवाई का है, ये पहले दिन की कार्रवाई है। याहिया मुख्तियार के अल्फाज पढ़कर सुनाता हूं आपको। ये जनाब इन्हें सुबह 9:20 पर कौमी असेंबली में दाखिल किया गया और फिर याहिया मुख्तियार साहब जो अटार्नी जनरल थे उस वक्त,
انہیں بتایا گیا کہ یحییٰ بختیار صاحب آپ سے سوال کریں گے، اور یحییٰ بختیار صاحب کو سوال دینے والے اپنے دور کے جید علماء تھے، جن میں مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مولانا مودودی اور مولانا تقی عثمانی اور بے شمار جید علماء وہاں بیٹھے ہوئے۔ ان کو سالوں کو تو یہ جو خبیث نسل کے مرزئی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گدھے کو، مسرور جو ایک طوائف کی اولاد ہے، وہ تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، اور دنیا کے جید علماء جنہوں نے تفاسیر قرآن لکھی ہیں، حدیث پر ان کا مکمل دسترس حاصل ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف فیصلہ تم نے دے دیا، ہم نے تو جاہلوں سے لینا تھا۔ یہ جاہل کا بچہ جو مسرور ہے، ایک طوائف کی اولاد، یہ فیصلہ دے گا؟ اور مرزیو تمہارے دماغ خراب ہو گئے، یہ تمہیں اسلام نہیں دھوکہ فراڈ بیچتے ہیں، کفر بیچتے ہیں۔ تو پہلا سوال سنیں، یہ جی انہوں نے جو پھٹے چکتے، اب آجو جس نے اسمبلی کی کارروائی پر بات کرنی ہے آجے، جس صفحے پر کہو گے بات ہوگی، اور ایک بھی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر قادیانیت کے جواب میں کسی کو لگا ہو، اسمبلی کے رکن کو، کہ ہا قادیانیوں ہو سکتا ہے صحیح ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر سوال پر اور ہر قادیانی جواب پر قومی اسمبلی کے ممبران کو لگا اتنے جھوٹے، اتنے لعنتی، اتنے خبیث، یہ ان کے تاثرات تھے۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے پاس سے بناتا ہوں، میرے خاندان کے آدمی قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور بھٹو کے ایڈوائزر بھی تھے، میں نے ان سے سنا ہے، انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں جو یہاں پر موجود تھے۔ آپ لوگ تو ایسے ان کے جھوٹ سنتے ہیں، اور یہ تو لکھی ہوئی تحریر بتا رہا ہوں۔ آگے سنیں، یحییٰ بختیار کا پہلا کویسچن، جناب اوپننگ کویسچن ہے پہلے دن کی کارروائی کا، انگریزی زبان میں ہے، میں ترجمہ کر دوں گا۔ کہتا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے یحییٰ بختیار صاحب جو ہیں، I will be asking you certain questions، کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات سوال پوچھوں گا۔ If you find that you can't answer these questions or any of them, or you do not want to answer that question, you are not bound to do so۔ کہ اگر آپ کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں یا نہ دینا چاہیں تو بے شک نہ دیں، آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں۔ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں یحییٰ بختیار صاحب۔ بٹ یو ول اپریشیٹ، کہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، دیٹ دی اسپیشل کمیٹی، جس میں سارے علماء شامل ہیں، یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، قومی اسمبلی کے ممبر موجود تھے، سب سن رہے تھے، لیکن ایک اسپیشل کمیٹی تھی علماء دین پر مبنی، جن میں سے اکثر قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ کہتے ہیں کہ دیٹ دی اسپیشل کمیٹی ول ڈرا سچ inference as it considers appropriate from your refusal to answer any particular question۔ یحییٰ بختیار صاحب قانونی پابندیاں ہم نے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جواب نہ دینے میں آزاد ہیں، لیکن اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ جو اسپیشل کمیٹی علماء دین کی بیٹھی ہے، یہ اس سے نتیجہ نکالے گی اور آپ پر وہ نتیجہ لاگو کر دیا جائے گا۔ That inference may be favorable to your cause، کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نتیجہ آپ کے حق میں ہو، اور may be adverse، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو۔ If you are not in a position to answer any question straight away، کہ اگر آپ کسی سوال کا جواب اسی وقت نہ دینا چاہیں، you may ask the committee give you time to answer the question۔ کہتے ہیں کہ کمیٹی اس کو بارے میں سوچے گی، اگر اسے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹائم دے گی۔ پھر آگے اس کے لفظ ہیں یحییٰ بختیار صاحب کے کہ ناؤ سر ول یو ٹیل us who was the founder of احمدیہ موومنٹ۔ اس پر بڑا جھگڑا کھڑا ہوا کہ ان کو احمدی نہیں کہا جائے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اسی لیے
इसके टाइटल में कादियानी इशू लिखा गया, अहमदी नहीं लिखा गया। ये एक दो दफ़ा गलती से उनसे कहा गया है, ये आप समझ लें, वरना कादियानी इनको कहा गया कार्रवाई के दौरान, ये अहमदी नहीं है। ये अहमदी इनको कहना और इनको मानना गुनाह कबीरा में शामिल है। तो आप देखें, सवाल ये हो क्या है कि नाउ सर जनाब, विल यू टेल अस हु वाज द